Hello students, today we are going to learn about the not-for-profit organization part 2 class 12 chapter 1st NCERT course. Let's start it. Now we are going to discuss about the receipt and payment account. The not-for-profit organizations are also required to prepare financial statement at the end of each accounting period. अलाभकारी संगठनों को प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है. Although these organizations are not profit-making entities and they are not required to make trading and profit and loss account. हालांकि ये संगठन अलाभकारी संस्थाएं हैं और उन्हें व्यापार और लाभ हानि खाते बनाने की आवश्यकता नहीं होती है. But it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not. लेकिन ये जानना आवश्यक है कि व्यय को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान आय पर्याप्त थी या नहीं. Not only that, they have to provide the necessary financial information to members, donors, contributors and also to the registrar of societies. इतना ही नहीं, उन्हें सदस्यों, दानकर्ताओं, योगदानकर्ताओं और समिति के रजिस्ट्रार यानी पंजीकर्ता को भी आवश्यक वित्तीय जानकारी प्रदान करनी होती है. For this purpose, they have to prepare their finance account at the end of the accounting period and the general principles of accounting are fully applicable in their preparation. इस उद्देश्य के लिए उन्हें लेखा वर्ष के अंत में अपने अंतिम खाते तैयार करने होते हैं और लेखांकन के सामान्य सिद्धांत उनके तैयारी में पूरे तरह से लागू होते हैं. As stated earlier, the final accounts of a not-for-profit organization consist the following. जैसे कि पहले बताया गया है कि अलाभकारी संगठनों के अंतिम खातों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है. फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता. और बैलेंस शीट. Now we are going to discuss when we are prepared the receipt and payment account. It is prepared at the end of accounting year on the basis of cash receipt and cash payments recorded in the cash book. इसे रोकड़ बही में दर्ज नकद प्राप्ति और नकद भुगतान के आधार पर लेखा वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है. It is a summary of cash and bank transaction under various heads. For example, subscription received from the member on different date which appear on the debit side of the cash book shall be shown on the receipt side of the receipt and payment account as one item with its total amount. ये विभिन्न शीर्षकों से नकद और बैंक लेन देनों का सारांश है. उदाहरण के लिए अलग अलग तिथियों पर सदस्यों से प्राप्त सदस्यता जो रोकड़ बही के डेबिट पक्ष पर दर्शाया जाता है उसे प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष पर उसकी कुल राशि के साथ में एक मत के रूप में दिखाया जाएगा. Similarly, salary, rent, electricity charges paid from time to time as recorded on the credit side of cash book, but the total salary paid, total rent paid, total electricity charges paid during the year appear on the payment side of the receipt and payment account. इसी प्रकार समय समय पर भुगतान किए गए वेतन, किराया, बिजली शुल्क इत्यादि को रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाता है. लेकिन भुगतान किया गया कुल वेतन, भुगतान किया गया कुल किराया, वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल बिजली शुल्क को प्राप्ति और भुगतान खाते के भुगतान पक्ष पर दर्ज किया जाएगा. Receipt and payment account gives summarized picture of various receipt and payment irrespective of whether they pertaining to the current period, previous period or succeeding period or whether they are of capital or revenue nature. प्राप्ति और भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों और भुगतानों की संक्षिप्त तस्वीर देता है, भले ही वे चालू अवधि के हो, पिछली अवधि के हो, आगामी अवधि से संबंधित हो या चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत प्रकृति के हो. This account does not show any non-cash item like depreciation etc. ये खाता गैर नगद मद जैसे कि मूल्यह्रास इत्यादि को नहीं दिखाता है. The opening balance in receipt and payment account represent cash in hand and cash at bank which is shown on its receipt side, and the closing balance of this account represent cash in hand and bank balance at the end of the year which appear the credit side of receipt and payment account.
प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष हस्त रोकड़ या बैंक हस्त रोकड़ को प्रदर्शित करता है, जो इसके प्राप्ति पक्ष पर दिखाया जाता है। इसी खाते का अंतिम शेष वर्ष के अंत में हस्त रोकड़ या बैंक हस्त रोकड़ को प्रदर्शित करता है, जो क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। However, if it is bank overdraft at the end, it shall be shown on its debit side as the last item. हालांकि ये भी अंत में बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसे डेबिट पक्ष पर अंतिम मद के रूप में दिखाया जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैश बुक ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब। ये इसकी कैश बुक है, जिसमें हमें एक तो बैंक अमाउंट और ऑफिस अमाउंट के नाम से 2 कॉलम दिए हुए हैं, यानी बैंक के ट्रांजेक्शन और कैश के ट्रांजेक्शन में हमें दिए हुए हैं। एक रिसिप्ट साइड है और एक पेमेंट साइड है। ये सारी चीज़ें हमें रिसिप्ट हुई है और ये चीज़ों के लिए हमने पेमेंट किया है। अब इनके हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा है, सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड में ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम है जिनका रिपीटेशन बार बार हुआ है। अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो बार बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट 1,20,000, इसके आगे कोई पर्टिकुलर ईयर लिखा हुआ नहीं है, तो ये इस ईयर का ही है। फिर 30,000 जो कि 2013 एंड 14 से रिलेटेड है। फिर 45,000 जो कि इस करंट ईयर से रिलेटेड है। फिर 35,000 ये भी करंट ईयर का है। फिर 10,000 जो कि 2015 एंड 16 का है, जो हमें इस करंट ईयर में रिसीव हुआ है। उसके बाद में एक और सब्सक्रिप्शन है 25,000 जो कि करंट ईयर का ही है। अब इन सभी सब्सक्रिप्शन को हम एक टेबल में लिखेंगे और इस तरीके से उसको शो करेंगे। 2014-15 यानी जो करंट ईयर है उसके कितने हैं, 13-14 जो लास्ट ईयर था उसका सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, और 15-16 जो कि नेक्स्ट ईयर है उसका सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ है। अब फिर से हम हमारी कैश बुक चेक करेंगे और सब्सक्रिप्शन के बाद में जो सेकंड आइटम है वो एंट्रेंस फीस, हम इसको चेक करेंगे ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। हमने चेक किया ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको फिर से इसको एक टेबल बनाएंगे हम और उस टेबल के अंदर शो करेंगे एज ए वर्किंग नोट। अब फिर से कैश बुक पे आ जाते हैं। अभी हम थर्ड नंबर पर जो आइटम देख रहे हैं वह है लाइफ मेंबरशिप फी। हम इसको चेक करेंगे, चेक करने पे पता चला ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सेम तरीके से इसकी भी एक टेबल बनाएंगे एज ए वर्किंग नोट, उसको शो करेंगे। इसी तरीके से कैश बुक के पेमेंट साइड में जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे कि जो पेमेंट्स हैं ये कितनी बार रिपीट हुए हैं, और फिर वो जो रिपीटेशन है उन चीज़ों की हम अलग से टेबल बनाएंगे, वह मेंशन करेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। अब वो जो कैश बुक पे आइटम थे उन सभी आइटमों को हमने यहाँ शो किया है, बट आप देख रहे होंगे कि वो कैश बुक कितनी बड़ी थी और ये पेमेंट रिसिप्ट अकाउंट कितना छोटा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें थी वो अलग अलग डेट पे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स थे। जैसे सैलरी 3-4 बार थी, प्रिंटिंग का खर्चा 3-4 बार था, पोस्टिंग का खर्चा 3-4 बार था, पोस्टेज वगैरह का, और हमें सब्सक्रिप्शन भी 4-5 बार मिला था, एंट्रेंस फीस भी 2-3 बार मिली थी, और मेंबरशिप फ़ी भी हमें 2-3 बार मिली थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उनको कंबाइन कर लिया, समराइज़ कर लिया, और वो जो पर्टिकुलर चीज़ें उनको एक बार में मेंशन कर दिया। ध्यान रखना, जैसे कैश बुक में जो रिसिप्ट होती है वो डेबिट साइड होती है, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी डेबिट साइड ही होता है। ये कैश बुक और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, दोनों के फॉर्मेट लगभग सेम होते हैं और चीज़ें भी लगभग सेम जगह पे लिखी जाती है। जो आइटम रिपीट हो रहे थे उनको जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया, और जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जो कि एक ही बार हुआ है, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, मतलब यानी पेमेंट हो या रिसिप्ट हो, तो उसको भी हमने यहाँ पे सिंगल जो आइटम है उसको मेंशन कर दिया। अभी एक और एग्जांपल है, बट यहाँ पे आपको कैश बुक गिवी नहीं है, ये कोई हेल्थ क्लब है जिसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। पास में ही हम जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट का एक फॉर्मेट है, इसमें हम चीज़ें मेंशन करेंगे। सबसे पहले कैश इन एंड कैश एट बैंक जो गिवन है, इसको जो है वो हम इसके रिसिप्ट साइड में शो करेंगे बैलेंस BD के नाम से, कैश एट हैंड एंड कैश एट बैंक के नाम से। फिर जो सेकंड आइटम है वो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, और क्या दिया हुआ है, डोनेशन। ये दोनों की दोनों हमारे इनकम है यानी रिसिप्ट्स है, इसको जो है वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। उसके बाद में है हमारा इन्वेस्टमेंट परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, कोरियर, संडे एक्सपेंसेस, सब खर्चे हैं। तो ये जो भी खर्चे हैं सारे के सारे पेमेंट साइड में शो किए जाएंगे। तो अभी उठा के हम इनको पेमेंट साइड में डाल देते हैं। अभी जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें कैश इन हैंड का, ये बाई साइड में शो किया जाएगा, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो इसको बाई साइड में शो कर देते हैं, यानी पेमेंट साइड में। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उन सबको हमने मेंशन कर दिया है। अब हम दोनों साइडों का टोटल करेंगे और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे।
तो एक साइड का टोटल है 230, दूसरे का है 139। तो क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो क्रेडिट साइड में निकलेगा, और जिसको हम कैश एट बैंक के नाम से मेंशन कर देंगे एज ए बैलेंसिंग फिगर, जो कि 91,000 रुपीज़ का है। अब इसको मेंशन करने के बाद में हमारी दोनों साइडों का टोटल सेम हो जाएगा 230 एंड 230। तो फाइनली हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट मी।